नहीं आई? नहीं सर। हाँ, थोड़ा सा वेट कर लेते रीना के लिए। लेट्स हेडिंग डालिए बेटा। क्लासिफिकेशन ऑफ रिटेल आउटलेट्स बेस्ड ऑन हेडिंग डालिए बेटा। क्लासिफिकेशन ऑफ रिटेल आउटलेट्स क्लासिफिकेशन ऑफ रिटेल। एक मिनट। हाँ,
Classification of retail outlet based on channel. हेडिंग डाल दिया? हाँ सर। हाँ ठीक है। पहला लिखिए डिपार्टमेंटल स्टोर। पहला लिखिए डिपार्टमेंटल स्टोर। उसमें लिखिए ए डिपार्टमेंटल स्टोर इज a departmental store is a setup which offers wide range of wide range of products to the end user under one roof. In departmental store, comma, in departmental store, comma, the consumer can get almost the consumer can get almost all the products they aspire to shop. All the products they aspire to shop. At one place only. Full stop. At one place only. कहाँ तक लिखा बेटा? At one place only. हाँ, सेकंड लिखिए डिस्काउंट स्टोर. सेकंड लिखिए डिस्काउंट स्टोर. डिस्काउंट स्टोर्स. लिखिए उसमें डिस्काउंट स्टोर ऑल्सो ऑफर्स discount stores also offer a huge range of
a huge range of products to the end users. Product to the end users. Products to the end user. Products to the end user. But at discount rate. But at discount rate. But at a discount rate. Full stop. The discount store generally offer. The discount store generally offer, comma, the discount store generally offers a limited range of quality, limited range of quality, limited range of quality. In certain cases, in certain cases, it might be little inferior. It might be little inferior as compared to departmental store. As compared to departmental store. नेक्स्ट लिखिए बेटा सुपरमार्केट. A retail store, सुपरमार्केट में लिखो, a retail store which generally sells food products, and household items. Household items, comma, properly placed, and arranged in specific department, department is called a supermarket. It's called a supermarket. नेक्स्ट लिखिए बेटा वेयरहाउस स्टोर. वेयरहाउस स्टोर. नेक्स्ट लिखिए बेटा वेयरहाउस स्टोर. नेक्स्ट लिखिए अ वेयरहाउस स्टोर. A warehouse store. A retail format which sell a retail format which sells
A retail format which sells limited stock in bulk at discount rate. It's called warehouse store. It's called warehouse store. It's called warehouse store. Full stop. Warehouse store do not bother. Warehouse store do not bother much about interiors. Much about Sir, warehouse store do not. bother. BOTHER bother much about the interiors of the store. The and the products are not properly displayed. Sir, much about interior store. Much about interiors of the store and products are not properly and products are not properly and products are not properly displayed. Products are not properly displayed. Products are not properly. Next लिखिए किराना स्टोर. किराना स्टोर. Kirana store are the small stores. Kirana store or of Kirana store are the small stores run by individual. Run by individual. Run by individual in the nearby locality. In the nearby locality to cater to daily needs of the consumers. Daily needs of the consumer. नेक्स्ट हेडिंग डालिए.
merchandise sold. Merchandise sold. According to accounting tools. Merchandise sold किया, लिखिए उसमें the cost of merchandise sold is the cost of merchandise sold is the cost of goods so is the cost of goods. The cost of merchandise sold is the cost of goods. Cost of goods that have been sold by wholesaler. That have been sold by wholesaler or retailer. Full stop. These entities do not manufacture. These entities do not manufacture their own goods. 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 Comma, instead buying the goods from third parties. Instead buying the goods from third parties. Buying the goods From third parties. From third parties. And selling them to their customer. And selling them to their customer. मर्चेंडाइजिंग को नीचे के लाइन में लिखो बेटा पैरा कर, नीचे के लाइन में लिखिए पैरा करके, नीचे के लाइन में लिखिए पैरा करके मर्चेंडाइज कॉमा
merchandise, comma, broadly speaking, comma, broadly speaking, comma, broadly speaking, comma, broadly speaking, comma, is synonymous with the retail sales, is synonymous with 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 retail sales. Where businesses sell products to consumer, businesses sell product to consumer, full stop. Merchandising more narrowly, merchandising more narrowly, comma, may refer to the marketing, may refers to the marketing, comma, promotion, and advertising the product, and advertising the product, and advertising the product, and advertising the product, intended, 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 intended for retail sales, intended for retail sales, full stop. The commodities or goods, the commodities or goods the commodities or goods the commodities or goods that are bought, that are bought and sold in business, were sold in a business, full stop. The 5 rights include, the 5 rights include the 5 rights include providing the right merchandise, providing the right merchandise, comma, at the right place,
at the right place, comma, at the right time, comma, in the right quantities, comma, in the right quantities, comma, at the right price. सर राइट क्वांटिटीज के बाद क्या है? Right quantity, right price. मर्चेंड नीचे के लाइन में लिखो बेटा प्यारा करके, मर्चेंडाइज रिफर्स टू merchandise refers to merchandise refers to any type of goods, comma, 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 include personal and commercial products, include personal and commercial products. Include personal and commercial products, comma, as well as commodities that are sold, as well as commodities that are sold, as well as commodities that are sold. To members of the public, to the members of public or other businesses, or other businesses. Full stop. Example of merchandise may include examples of merchandise may include example of merchandise may include things that are given away, things that are given away free by companies, free by companies, सर थिंग्स दैट आर के बाद क्या है? given away free by companies, given away free by companies or political parties,
or political parties aim at cultivating loyalty. Aim at cultivating loyalty. Aim at cultivating loyalty. नीचे के लाइन में लिखिए पैरा करके. A general merchandise store is a general merchandise store is a general merchandise store is establishment primarily selling stores is establishment primarily selling establishment primary selling household goods household goods to customer to customer. ठीक है. हाँ सर. एक मिनट इसके बाद types of ownership. Types of ownership. Here's a summary from Marketing 91. Best 8 types of हेडिंग डालिए बेटा टाइप्स ऑफ ओनरशिप. डाल दिया. डाल दिए क्या? टाइप्स ऑफ ओनरशिप.
हो गया? हाँ हेडिंग डाल दिए? हाँ ठीक है, बाद के लेक्चर में उसको ये करेंगे, डिस्कस करेंगे। अच्छा मुझे बताओ क्या क्या लिखा आज रोहिणी? हाँ सर, पढ़िए पर क्या क्या लिखा आज? अभी लिख के दिया वो। हाँ बेटा, आज अभी लिखा हुआ। Classification of retail outlet. Departmental store. A departmental store is a set of which offers wide range of product to the end users. Under one roof, in departmental store, the consumer can get almost all the product they aspire to show at one place only. Second, discount store. Discount store also offer a huge range of product to the end users. But at discount rate, the discount store generally offers a limited range of might be little inconvenient as compared to departmental. Third, supermarket. A retail store which generally sell food products and household items properly placed and arranged in specific departmental is called a supermarket. Warehouse store. A warehouse store or retail format which sells limited stock in bulk at discount rate is called warehouse store. Warehouse store do not boast much about interiors of the store and products are not properly displayed. Kirana store. Kirana store are these small store run by individual in the nearby locality to cater to daily needs of the consumer. Merchandise sold. The cost of merchandise sold is the cost of goods that have been sold by where sellers, wholesalers or retailers. These do not manufacture their own goods inside buying the goods from third parties and selling them to their customer. Merchandise, broadly speaking, is synonymous with retail sale where business sell product to consumer. Merchandising more narrowly may refer to the marketing, promotion and advertising the product intended for retail sale. The commodities or goods that are what were sold in business. The five rights include providing the right merchandise at the right place at right time, in the right quantities, at the right. Merchandise refers to any types of goods include personal and commercial products as well as commodities that are sold to the members of public or others business. Example of merchandise include things that are given away free by company or political parties aimed at cultivating loyalty. A general merchandise sold is establishment primarily selling household goods customer. ठीक है, हाँ सर। मैं आपसे सवाल पूछे, आप सवाल पूछो। हाँ सर। हाँ, व्हाट इज मार्केटिंग? कोमल, यू आंसर। व्हाट इज मार्केटिंग? Sell product to customer. हिंदी में चलेगा, मराठी में भी चलेगा, थोड़ा इलेबोरेट करिए।
फाइनल ईयर में आते आते मार्केटिंग का आपको क्या क्या पता चला? और मार्केटिंग मीन्स जैसे कस्टमर को प्रोडक्ट सेल करना, और वो प्रोडक्ट जो सेल कर रहे प्रोडक्ट वो सेटिस्फाई होना चाहिए कस्टमर टू प्रोडक्ट, और कस्टमर को कन्विंस करना भी आना चाहिए। If you are selling Reliance Jio SIM card, if you are selling Reliance Jio SIM card to a customer, then how you can sell that product? If I tell you that, Komal, sell this Reliance Jio SIM card to the customer, how you can sell that product? सर ये सिम मतलब उनको कस्टमर को बोलेंगे सर सिम अच्छी है, नेटवर्क। Look, I am customer and sell your product to me. सर जियो का नेटवर्क बहुत अच्छा है, उसमें ऑफर भी बहुत अच्छे आते हैं, नेट भी बहुत सारा मिलता है, और जो वेस्टेज नेट है वो नेक्स्ट मंथ में यूज भी हो जाता है। And लेकिन आपका तो नेटवर्क ही नहीं रहता। हमारे इधर बहुत इशू है अभी जियो का, बहुत। अब पहले नहीं था सर, अभी अभी हो रहा है। अरे बेटा, आपको प्रोडक्ट सेल करना है। एज अ सेल्समैन आपको मुझे प्रोडक्ट सेल करना है, तो आप ये थोड़ी बोलोगे कि हमारे घर की तरफ भी नहीं रहता। अच्छा, आप बोल रहे हो ऐसे ही? हाँ, सेल मी दैट प्रोडक्ट टू मी। Suppose I want to purchase a Reliance Jio SIM from you, and you are the salesman of Reliance Jio, and tell me all the specification details about your company, because I don't want to purchase a one SIM. I want to purchase a 10 SIM at one time. So you can, if I convince, then I purchase 10 SIMs from you, which gives a very good benefit to you. Okay, then sold that product to me. If I convince, then I am ready to purchase 10 SIM card from you, and that will be a good benefit for you. So sell me Reliance Jio SIM card. सर अभी ऑफर चल रहा है जियो में, आप देख सकते हो। अदर सिम में बहुत ज्यादा पैसे लग रहे हैं फॉर रिचार्ज, जियो सिम में नहीं लग रहा है, और ऑफर में मिल रहा है, एक सिम पे दूसरे सिम फ्री है। I am not convinced. Okay, if you convince to me, then I will ready to purchase 15 SIM card from you at one time. Convince me. जियो में नया ऑफर लॉन्च होने वाला है सर अभी। थोड़ा 5 मिनट दीजिए ना सोचने के लिए। हाँ ठीक है, मेरे तरफ ध्यान, 5 मिनट ही बचे हमारे पास। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम कभी कहीं पे भी जाते हैं कोई प्रोडक्ट बेचने के लिए, सबसे पहले उसको विश करो, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। ठीक है। और अगर आप किसी के शॉप में जा रहे हो तो उसको शॉप की तारीफ कर लो, सर आपका शॉप बहुत अच्छा है। 20% काम हो गया, 20% काम हो गया। ठीक है। अभी अभी आपके प्रोडक्ट की जो स्पेसिफिकेशन है, जो दूसरे प्रोडक्ट में नहीं है, वो उसे बताओ। आपके प्रोडक्ट में जो स्पेसिफिकेशन है, जो दूसरे कंपटीटर में नहीं है आपके, जो वी नहीं दे सकता, जो एयरटेल नहीं दे सकता, जो BSNL नहीं दे सकता, वो जियो दे सकता है। इस तरीके से उसे कन्विंस करो। सर जैसे कि आप जानते हैं
जब हमारी कंपनी स्टार्ट हुई थी तो पहले 6 महीनों के लिए हमने सबको फ्री में रिचार्ज दिए थे, फ्री में सिम कार्ड दिया था, क्योंकि हम चाहते थे कि हमारे लोगों के पास, इंडियन लोगों के पास एक ऐसा सिम कार्ड हो जो उनको ज्यादा अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। हमने बाकी कंपनी की तरफ पैसे को चार्ज नहीं किया है, इसलिए हम पहले सर्विस देना जानते हैं, बाद में हम आपसे उसका प्राइस चाहते हैं। अगर आप रिलायंस जियो का देखते हो तो आज टेलीकॉम सेक्टर में सबसे इमर्जिंग कंपनी हमारे रिलायंस जियो की है, जो सिर्फ और सिर्फ 150 रुपए में 1.5 GB डाटा पर डे 28 दिनों के लिए देती है। राइट, अगर हो सकता है कि आप कभी कभी डाटा यूज ना करो, आपका डाटा बच जाए, तो वो डाटा आपको वीकेंड में भी कंपनी की ओर से दिया जाता है। सो और अगर आप एक 15 से 20 सिम अगर लेते हो, अगर आप 15 से 20 सिम लेते हो हमारे यहाँ से, तो आपको एक्स्ट्रा एक और सिम दिया जाएगा आपके पर्सनल यूज के लिए, जिसके 28 दिनों के लिए, जिसमें हर रोज 1.5 GB डाटा मिलेगा। हो गया, राइट। कभी भी हम कोई भी प्रोडक्ट बेचने के लिए जाते हैं ना बेटा, तो सबसे पहले ध्यान रखो कि उसको वो स्पेसिफिकेशन बताओ प्रॉपरली, हमारे प्रोडक्ट में जो रहते हैं, जो हमारे कॉम्पिटिटर के पास नहीं है, जो हमारे कॉम्पिटिटर के पास नहीं है। पार्ले जी, पार्ले जी, जी मतलब ग्लूकोज। सर, हमारा प्रोडक्ट ग्लूकोज से, हमारे प्रोडक्ट में ग्लूकोज बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है, हमारे प्रोडक्ट में ग्लूकोज बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है। अगर आप हमारे अगर आप अगर आप चंचल, अगर आप अगर आप हमारा प्रोडक्ट खरीदते हो तो आप आपके अगर आप उसे कंज्यूम करते हो तो आपके पास, आपके साथ ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज की मात्रा जो होगी, जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। ठीक है, ये हो गया पार्ले जी का जी। पार्ले जी का जी मतलब ग्लूकोज है, और पार्ले, उसके जो ऑनर है वो विले पार्ले में रहते हैं मुंबई में, इसलिए पार्ले जी। हर हर बेटा, हर चीज को कोई ना कोई मीनिंग होता है। आप पढ़ते नहीं हो, आप करंट अफेयर नहीं रखते हो, करंट अवेयरनेस नहीं रखते हो, इसलिए आपको पता नहीं। पार्ले पता है क्यों है? क्योंकि उसका उसका जो ऑनर है वो मुंबई में विले पार्ले में रहता है, इसलिए पार्ले जी। पार्ले, विले पार्ले का पार्ले और ग्लूकोज का जी, पार्ले जी। ठीक है, हाँ सर। हाँ 2:59 हो गए, दूसरे स्टूडेंट आ रहे हैं दूसरे क्लास के, इसलिए हम 5 बजे मिलेंगे। ठीक है, हाँ सर, ठीक है। ओके।
हेलो Yes, ma'am. हेलो हेलो यस मैम। ओके गर्ल्स, हम लोग प्रीवियस क्लास में ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक कंप्लीट कर रहे थे। गर्ल्स, स्क्रीन दिख रही है बेटा आपको? यस मैम। ओके ग्रुप काउंसलिंग हमने प्रीवियस क्लास में कंप्लीट किया था। And why does group counseling work? ये हमने कंप्लीट किया था। What do I talk about? ग्रुप के बारे में बात करते हुए किस ग्रुप के बारे में बताया था कि हर एक इंडिविजुअल को पार्टिसिपेट करना चाहिए करके। ठीक है, ओके नेचर ऑफ ग्रुप काउंसलिंग पढ़ने करेंगे आज कवर हम। मेरी वॉइस आ रही ना बेटा? यस मैम। ओके पार्टिसिपेशन इन द ग्रुप, नेचर ऑफ ग्रुप काउंसलिंग पहले देखेंगे पार्टिसिपेशन। You control and are ultimately responsible for what, how much, and when you tell the group about yourself. ठीक है, अब क्या बात कर रहे हो, कितना बात कर रहे हो अपने बारे में, कितनी चीजों से, कितने कौन से टॉपिक पे कौन से अपने से रिलेटेड अपने सेल्फ के बारे में बता रहे हो। द मोर यू बिकम इन्वॉल्व द मोर यू आर लाइकली टू बेनिफिट। जैसे आपके क्लास में देख लो, जो जितना ग्रुप में जितना क्लास में एक्टिव होता है, जितना क्लास में रिस्पॉन्ड देता है, उतना ही टीचर्स या जितना ही प्रिंसिपल सर या उतने ही सारे कमिटी उसी बच्चों को और उसी स्टूडेंट से इंटरेक्ट करते हैं, कुछ भी इंफॉर्मेशन लेना है या कुछ भी जानना है। ठीक है, तो इट इज नेसेसरी टू ऑल ऑफ अस कि आपको भी एक्टिवली सभी को पार्टिसिपेट करना है, सो दैट एवरीवन नोज दैट कि आप रेगुलर स्टूडेंट हो, आपको
जो भी हम पढ़ाते हैं वो समझ में आता है, आपको जो भी असाइनमेंट हम देते हैं, जो भी वर्क हम आपको देते हैं, वो आप वर्क टाइम पे कर रहे हो, इसमें दैट कि आपको उस टॉपिक से रिलेटेड या उस कंसेप्ट से रिलेटेड सारी चीजें समझ रही हैं। ठीक है, मैंने प्रीवियस क्लास में भी आपको सिर्फ बोला था रिवीजन लेते हैं, जो मैंने पढ़ाया है वही आपको एक्सप्लेन करना है इन योर मैनर। ठीक है, तो कुछ लड़कियों ने क्या किया, किसी ने एग्जांपल्स देके बताया कि इसमें ये एक्सरसाइज कर सकते हैं या उसमें वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। किसी ने सिर्फ नोट्स पढ़ के वो नोट्स का ही एक्सप्लेनेशन दिया, किसी ने सिर्फ नोट्स ही पढ़ा। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट उसमें कम से कम 3 या 4 लड़की ने पार्टिसिपेट किया, दैट्स अ मोर इम्पोर्टेंट कि 3 लड़कियों ने सबके सामने एक्सप्लेन करने का कॉन्फिडेंट रखा। ठीक है, तो क्या हो रहा है उसके लिए उनको अप्रिसिएशन मिल रहा है, उसके लिए उनका सेल्फ डेवलप हो रहा है, उनको कॉन्फिडेंट आ रहा है। मे बी नेक्स्ट टाइम वो और कॉन्फिडेंटली, पहले जब सबका आंसर्स नहीं होंगे तब शायद उसके पास सभी चीजों के आंसर्स होंगे। ठीक है, तो ग्रुप डिस्कशन में प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट होना सभी का बहुत जरूरी है। मोस्ट ऑफ most people find that when they feel safe enough and to share personal issues, counseling groups are very affirming. ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, जब उनको उनकी कंडीशन प्रॉपर है, उनको प्रॉपर एनवायरनमेंट मिल रहा है, प्रॉपर ट्रस्ट वाला पर्सन मिल रहा है, अंडरस्टैंडिंग पर्सन मिल रहा है, जहाँ पे कि क्या हो रहा है, वो अपने फीलिंग्स को प्रॉपरली शेयर कर पा रहे हैं, और उनको ये बिलीफ है और दे हैव अ बिलीव दैट कि हम जो भी इनसे डिस्कस कर रहे हैं, जो भी हम हमारे फीलिंग्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, मे बी इट्स गुड, मे बी इट्स बैड, ये सब चीजें कॉन्फिडेंशियली रहने वाली है। ये सब चीजें वो एक भरोसे से, एक ट्रस्ट के साथ में वो ग्रुप के साथ डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, उतना बेनिफिट और उतना एटमॉस्फेयर उनको कन्वीनियंस कर रहे हो। कभी भी बच्चों की जब काउंसलिंग होती है बेटा, जब बच्चों के माइंड को या बच्चे के न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स को देखा जाता है, तो क्या होता है, बच्चों के फेवर में चीजें रखते हैं। प्रॉपर अच्छा रूम होगा, रूम में प्रॉपर अच्छे तरीके से इक्विपमेंट्स होंगे, टॉयज होंगे, कलरफुल बॉल्स होंगे, कलरफुल चीजें होंगी उनके साथ पास में, सो दैट दे कैन फील कंफर्टेबल। ठीक है, देन जितना वो कंफर्टेबल वो बेबी फील करेगा, जितना कंफर्टेबल वो दूसरे बेबी के साथ में या टॉयज के साथ में खेलेगा, उतने इजीली वो सारे आंसर्स देगा, उतने इजीली वो सारे चीजों पे रिस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, समझ में आया। जब न्यू बॉर्न बेबी जब होता है, तब मे बी 2nd या 3rd मंथ में क्या करते हैं, जो जो मदर्स होती है, जो ग्रैंड मदर्स, वो क्या करते हैं, वो उनकी नजर चेक करते हैं कि बच्चे को नजर है कि नहीं है, वो जहाँ उसकी मम्मी जा रही है उस तरफ वो नजर घुमा रहा है क्या, जहाँ वो टॉय जा रहा है उस तरफ उसकी नजर जा रही है क्या। ये लोग क्या करते हैं, वही सब एग्जामिन करना शुरू करते हैं। अब उसको, बच्चे को तो ट्रेनिंग दी नहीं है कि तुमको ये चीज को देखना है, जब मैं इधर जाऊंगी तब तुमको भी आंख इधर करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम मूव कर रहे हैं अपने आप को, और बच्चे की रिफ्लेक्शन देख रहे हैं कि उसकी आई मूवमेंट प्रॉपर है कि नहीं है। सब मंथ जाने के बाद हम उसका साउंड इफेक्ट देख रहे हैं, कुछ हम सडनली कुछ चीज को बजा रहे हैं और हम देख रहे हैं कि बेबी वहां दिखता है कि नहीं दिखता है। ठीक है, कई मम्मी मदर्स लोग क्या करते हैं, बच्चों के बिहाइंड में कहीं तो भी हिडन रहती है, छुपी रहती है, और वहां से साउंड देती है बेबी को। तो बेबी क्या करता है, वो साउंड को रिफ्लेक्ट करता है, उस साउंड पे क्या करता है, वो चीजें वो उस चीजों पे रिफ्लेक्ट, अपने रिफ्लेक्शन शो करता है। ठीक है, देन वैसे ही फिर धीरे धीरे उसकी ग्रिपिंग, उसके पकड़ने की, उसके हाथ में कितनी स्ट्रेंथ है, देन उसकी स्ट्रॉन्ग, फिर वो कितने अच्छे तरीके से मूव हो रहा है, कितने अच्छे तरीके से वो पलट रहा है, देन वो उठने किसमें है या नहीं, उसका पैर फ्लेक्सिबल है या नहीं, उसके हैंड फ्लेक्सिबल है या नहीं। तो ये सारी चीजें, ये क्या होता है, डे टू डे एक मदर हर एक मंथ में ये चेंजेस देखती है अपने बेबी में। और ये चेंजेस देखने के लिए, ये चेंजेस मेजर करने के लिए ही कई बार नर्सरी स्कूल्स में, नर्सरी हॉस्पिटल्स में, या जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो भी देखते हैं। मे बी कोई कोई बच्चा वो जल्दी रिस्पॉन्ड नहीं दे रहा, थोड़ा लेट रिस्पॉन्ड दे रहा है, शायद उसको शायद थोड़ा हाई स्पीड सुनाई आती है या लो स्पीड सुनाई आ रही है। ठीक है, तो वो चीजों को समझ नहीं पा रहा है, कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा है कि बॉल को बैट से मारना है, बॉल को बैट से हिट किया जाता है, वो कोऑर्डिनेशन नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, वो चीजों को एक साथ में नहीं देख रहा है कि हाँ ये बॉल ऐसा आता है, देन ये बैट से उसको हिट करते हैं। जब वो कोऑर्डिनेशन देखता है तब वो दोनों को समझता है कि ठीक है ये बॉल है और ये बैट है, जब ये बॉल को ऐसा फेंकते हैं तो ये बैट से उसको मारा जाता है। वैसे ही जब बेबी ये सीखता है कि ये चावल है और ये दाल है,
ठीक है, जब चावल में दाल मिला के हम खाते हैं तब वो दाल चावल का फ्लेवर आता है। तो वो क्या कर रहा है, धीरे धीरे चीजों को सीख रहा है। वैसे ही काउंसलिंग में भी वही चीजें होती है, जितना आप उसको इतना फेवरेबल कंडीशन दोगे, जितना बेबी को, जितना जितना जो भी कंडीशन के, जो भी एज ग्रुप के आपके पास पर्सन आ रहे हैं, वो जितना फेवरेबल कंडीशन रहेगा, जितना उनके लिए फैमिलियर प्लेसेस रहेंगे, जितना उनके लिए कन्वीनियंट होगा, जितना वो कंफर्टेबल होगा, उतने इजिली वो आपसे इंटरेक्ट करेंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट, many people are helped by listening to others and thinking about how what others says apply to themselves. ठीक है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो पहले सभी के सुन ले रहे हैं कि हाँ इसने एक पॉइंट बताया, उसने एक पॉइंट बताया, शायद मैं भी ऐसा करता हूँ या मैं भी वैसा नहीं करता हूँ, या शायद ये कोई जो अभी कोरोना केस में जो चल रहा है अभी, ठीक है, मे बी जो पर्सन है वो घर पे भी रह रहा है फिर भी हैंड वॉश कर रहा है, जो पर्सन बाहर से आ रहा है वो भी हैंड वॉश कर रहा है, जो पर्सन मे बी रेगुलर वॉश नहीं कर रहा है फिर भी वो मेंटली और फिजिकली फिट है। क्यों? क्योंकि उसका माइंडसेट प्रॉपर है, ये उसमें इतना कॉन्फिडेंट है कि हाँ आई एम फिट, आई एम फाइन, मुझे कुछ नहीं हो सकता। तो वो कंसेप्ट क्या है, उसके बॉडी में, उसकी चीजों में, उसके माइंड में रिफ्लेक्ट कर रहा है, और ही और शी में भी स्ट्रॉन्गर देन कि वो तो बीमारी से वो लड़ सकते हैं। Then advantages of group counseling. Ways that help counseling may be more enriching for some than individual counseling includes. You can benefit from the group even during session when you say little but listen carefully to another. आप यहाँ पे एक एडवांटेजेस ये हो सकता है, आपको थोड़ा सा पता है, आपने थोड़ा सा जो भी पता आपने बोल दिया, लेकिन बाकी सब का आप सुन रहे हो, बाकी सब जो एक्सपर्टीज बैठे हैं, बाकी सब जो नॉर्मल पर्सन बैठे हैं, बाकी सब जो सर्वाइवल केसेस है, जो जो सर्वाइव कर चुके हैं, जो पेशेंट्स है, तो क्या हो रहा है, आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज वहां से ले सकते हो। यू विल फाउंड दैट यू हैव some important thing in common with other group members, और आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि हाँ ये ऐसे थॉट है सिर्फ मुझे ही नहीं आते हैं, बाकी लोग भी है जिनको ऐसी चीजें से फेस करना पड़ रहा है, ऐसे थॉट उनको भी आ रहे हैं, या ऐसे प्रॉब्लम से उनको भी फेस करना पड़ रहा है। ठीक है, तो अगर हमें प्रेग्नेंट वुमेन्स का हम लोग अगर इंटरेक्शन ले रहे हैं, ग्रुप डिस्कशन ले रहे हैं, तो कोई बोल रही है कि मुझे प्रेगनेंसी के टाइम मेरे पैर में स्वेलिंग आ रही है, कोई बोल रहा है कि मेरे प्रेगनेंसी के टाइम मेरे स्टमक में बहुत टीचिंग होती है, तो किसी किसी को लगता है कि शायद ये मुझे ही हो रहा है, या मेरी बॉडी स्वेल हो रही है, या मेरा फेस स्वेल हो रहा है। ठीक है, तो ये अपना अपना एक्सपीरियंस बता रहे, तो सबको समझ में आता है कि हाँ ओके, तो ये जो ईचिंग की जो प्रॉब्लम है ये सभी को होती ही है नॉर्मली, क्योंकि जो हमारा जो मास है वो स्ट्रेच होता है, दैट्स व्हाई हमको ईचिंग होती है स्टमक में हमारे। ठीक है, हमारे पैर में जो जो हमारे पैर में स्वेलिंग आती है, ये भी कॉमन है, चलो ये भी चीजें आती है प्रेगनेंसी के टाइम में। जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है, स्टैंडिंग, ज्यादा देर तक स्टैंडिंग पोजीशन में नहीं रह सकते, ज्यादा देर तक सिटिंग पोजीशन में नहीं रह सकते। ठीक है, तो वो सारी चीजें आप क्या कर रहे हो, मेजर कर रहे हो कि हर एक लोगों को भी क्या क्या अलग अलग पेजेस से गुजरना पड़ रहा है। Common with other group members as and has other work on their concern, you will learn much about yourself. In the group environment, others serve as mirrors who reflect aspects of yourself which you can recognize and then choose to change to or accept as they are. ग्रुप डिस्कशन में क्या लग रहा है हमको, जो सामने वाला जो पर्सन है वो लाइक अ मिरर, जो आपको क्लियर करता है आपके थॉट्स को, आपके मेंटेलिटी को, आपके व्यूज को, आपके प्रॉब्लम्स को, और आपको एक पॉजिटिव वे देता है कि नाउ दिस इज योर प्रॉब्लम, तो यू मे गो लाइक दिस, आपको ये चीजें करनी है, आपको ये प्रॉब्लम हो रही है तो आपको ये चीजें करना चाहिए, आपको ये प्रॉब्लम से ये सोल्यूशन दे सकते हैं। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, काफी सारे अच्छे अच्छे चेंजेस भी आ रहे हैं, जिसकी वजह से लोग अच्छी चीजों को भी अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, मिरर टेक्निक अगर सबको पता है क्या? बाहर के जो स्टडीज है अपने वर्ल्ड के, वो लोग अपने काउंसलिंग के वक्त या न्यूट्रिशन असेसमेंट के वक्त या फिर किसी को गाइड करते वक्त, काउंसलिंग करते वक्त, कई पेशेंट्स को
और अपने मिरर टेक्निक्स को भी यूज करने लगाते हैं? पता है आपको? गर्ल्स रिप्लाई तो दो बेटा, हाँ ना कुछ तो बोलो। No, ma'am. और किसी बाकियों को? ओके, तो मिरर टेक्निक ऐसी चीज है जिसमें कि पर्सन एक बहुत डिप्रेस्ड पर्सन है, ठीक है, मे बी शायद उसकी अनसक्सेस मैरिज की वजह से, या मे बी उसके ब्रोकन हार्ट की वजह से, या मे बी उसके जो भी उसका फेलियर, जो भी एक फेलियर उसने लाइफ में जो भी देख लिया या जो भी है उसने फील कर लिया एक फेलियर से कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, तो वो क्या हो गया, वो पूरी तरीके से डिप्रेस्ड हो चुका है। अब वो काउंसलिंग ले रहा है कि जैसे तैसे मुझे सरवाइव करना है, अनइजीनेस फील हो रहा है। कई बार ऐसे उसको थॉट्स भी आ रहे हैं कि शायद मे बी मुझे उसको लग रहा है कि मैंने सुसाइड करना चाहिए। तो ऐसे केसेस में जब कोई पर्सन को जब काउंसलिंग करते हैं तो बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, उसी स्टेजेस में एक मिरर टेक्निक भी होती है। मिरर में क्या होता है कि एक पर्सन को मिरर के सामने खड़ा खड़ा किया जाता है और उसको बोलता है कि बस आपको इस पर्सन को जो मिरर के अंदर आपको जो दिख रहा है बस उसको देखो, ठीक है। आफ्टर 5 मिनट्स, आफ्टर 6 मिनट्स वो जब खुद को देखता है, खुद को देखने के बाद उसको एक पेन पेपर, या मे बी वो अनएजुकेटेड होता है या उससे ओरली पूछते हैं या तो फिर वो पेन पेपर देते हैं और उसको बोलते हैं कि लिखो कि आपने अपने जो मिरर में जो पर्सन को देख रहे हो वो पर्सन में क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। तो वो पर्सन जब खुद को देखता है और वो भी एकदम प्लेजेंट एनवायरनमेंट में, एकदम शांत एटमॉस्फेयर में, गर्ल्स मे बी अगर आपको भी टाइम मिले तो यू कैन ऑल्सो यूज दिस टेक्निक। ओके, you stand in front of your mirror and observe your thing। आपको अपनी पर्सनालिटी को देखना है, सिर्फ अपने आप को देखना है कि आपको अंदर में क्या है, ठीक है। तो जब वो पर्सन ने नोट डाउन किया, उसने क्या नोट डाउन करना शुरू किया, सबसे पहली चीज कि मेरे पास आंखें हैं जिस वजह से मैं अपने आप को देख पा रहा हूँ, मेरे पास आईज है, मेरे पास आंखें हैं। उसने सबसे पहली चीज यही लिखा। अगर मेरे पास आंखें नहीं होती तो मैं शायद बाकी कोई भी चीजों को नहीं देख पाता था, ठीक है। देन सेकंड चीज उसने फिर धीरे 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 इतने सारे लिस्ट में लिखना शुरू कर दिया कि मेरे पास लेग्स है, मेरे पैर है, मेरे हाथ है, मेरी बॉडी है, मेरी फिजिक्स है, मेरे लुक्स है, मेरे लिप्स है, मेरी आईज है, मेरे नोज है, मेरे ईयर्स है। तो वो खुद को देख रहा है कि यार मेरे पास तो इतने फुल ऑफ 1 से लेके 80 चीजें तो मेरे पास ही है, और मैं बस एक चीज के लिए रो रहा हूँ जस्ट बिकॉज मेरा एक चीज कुछ खराब हो गई, या मे बी एक चीज में मेरा डिले हो रहा है, या मे बी एक चीज मेरे पास नहीं है फिलहाल में, या फिर आने में डिले हो रहा है। तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे क्या करता है जो जो काउंसलर होता है वो क्या करता है, उसके एम्प्टीनेस, जो उसका खालीपन है ना, वो भरने की कोशिश करता है। वो वहां पे क्या भरता है, वो खुद के बारे में उसको भरने शुरू करता है कि आप एक पर्सन हो, आपके पास सारी फिजिकल एबिलिटीज है। ऐसे कई लोग हैं जो आज के डेट में सो रहे हैं तो सुबह उठ के अंधे हो रहे हैं, या ऐसे कई लोग हैं जिनके एक्सीडेंट में उनकी आंखें जा रही है। बट आपके पास आंखें है, अभी भी है। आपका जो भी मे बी आपको जो भी बड़ा लॉस हुआ हो, मे बी आपका हार्ट ब्रोकन हुआ हो, मे बी आपको कुछ भी हुआ हो, बट आपके पास आंखें है, आपके पास अपना नॉलेज है, आपके पास अपनी एबिलिटी है, आपके पास अपना टाइम है। तो जितना टाइम आप इसमें से निकलने में लोगे उतना ही टाइम आप कुछ और स्टार्ट करने में लगा लो ना। सच्चा, यहाँ से निकलना क्यों है, यही से कुछ और नया स्टार्ट कर लो, ठीक है। एक बिजनेस पे आपका लॉस हो गया, मे बी आपको वो बिजनेस, मे बी आपका वो करियर बहुत अच्छा हो, मे बी आपको अपना प्रोफेशनल डांस कुछ खोलना है, और मे बी आपको ये एक डांस प्रोग्राम से आप डिस्क्वालीफाइड हो गए या निकल गए हो या बाहर हो गए हो, तो क्या कर रहे हैं आप फिर से डिस्कनेक्ट हो रहे हो, आप फिर से डिस्ट्रॉय कर रहे हो खुद को। यार मैं ग्रुप से नहीं, मैं तो कंपटीशन से निकल गया, मैंने कुछ नहीं अचीव किया, मैंने, तो वो खालीपन वो क्या कर रहा है, खुद को एम्प्टीनेस कर रहा है। जो अपने हार्ट में, जो दिल में उसका पूरा फुल ऑफ लव भरा है, वो धीरे धीरे वो खुद ही निकाल रहा है। तो
काउंसलिंग क्या करता है, जो उसका एम्प्टीनेस है उसी को वो फिल करता है, उसी में वो अपनी खुद की क्वालिटीज बताता है। क्योंकि हम जब बहुत ज्यादा सैड होते हैं गर्ल्स, तो हम तब खुद को कहीं ना कहीं खो देते हैं, क्योंकि हमको खुद को नहीं पता होता है कि हमारे पास क्या है। इसलिए ये मिरर टेक्निक्स को यूज किया गया है फॉरेनर कंट्रीज में, इसको बहुत ज्यादा बच्चों के लिए ज्यादातर यूज किया गया है, जो नार्कोटिक पर्सन है, जो जो ड्रग्स एंड ये जब चीजें अब्यूज यूज करते हैं, उनके लिए ये चीजों को यूज किया गया है, जिससे कि वो अपने सेल्फ को समझे, अपनी बॉडी को समझे, अपने बॉडी पर्सनालिटी और अपने खुद की सबसे पहले रिस्पेक्ट करें। ठीक है, क्योंकि नेचर ने हमको ये बॉडी दिया, नेचर ने हमको ये एनवायरनमेंट दिया है, इतना अच्छा फूड दिया है, इतना अच्छा एयर दिया है, इतने अच्छे वाटर दिया है, सब चीजें दिया है हमारे पास में। हमको सिर्फ उस चीज को अच्छे से रिसीव करना है और उसको वापस में अच्छे से देना भी है। ठीक है, तो ये इस तरीके की मिरर टेक्निक होती है। मे बी आप कभी लोनली फील करते हो, या मैं कभी भी, या फिर कभी आप फ्री हो, तो आप ये टेक्निक यूज करके देखो, और जो भी ये टेक्निक यूज करेगा मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा। ठीक है बेटा। हेलो आरती, मेरी वॉइस आ रही है? ब्लेसी, चंचल, दीक्षा, प्रणाली। Yes, ma'am. ठीक है, तो आप लोगों को जब भी फ्री टाइम मिलेगा ये टेक्निक यूज करके देखो, और आप एकदम प्लेजेंट एनवायरनमेंट में रहना, एकदम शांत, इसमें कूल डाउन काम होकर ही ये टेक्निक को यूज करो, और मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करो कि आपको कैसा फील हो रहा है। ठीक है, तो आपको ये प्रैक्टिकली ये चीज समझ में आएंगी कि हाउ इट्स वर्क। ठीक है, मे बी जिसका दिमाग में या जिसका माइंड में कंट्रोल नहीं होगा, शायद उसको रिजल्ट नहीं देखने में टाइम हो, शायद उसको एक बार में नहीं मिले, दूसरे बार में नहीं मिले, तीसरी बार में जरूर वो चीज को फील कर पाएगा वो। ठीक है, तो ये ग्रुप डिस्कशन में भी क्या हो रहा है, उनके लिए भी वो एक एज अ, जो बाकी जो कंटेस्टेड है, बाकी जो ग्रुप में जो लोग हैं, उनके लिए एक मिरर है, जो उनको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं उनके क्या थॉट्स है, और उनके क्या थॉट्स में क्या अच्छे थॉट्स है और क्या खराब थॉट्स है, क्या बुरे थॉट्स है, और आपको क्या चीजें करना चाहिए जिससे कि आप में नए चेंजेस आ सके। Group members will bring up issues that strike a chalk in you. Issue of issues of which you may not have been aware. ठीक है, कई बार ऐसे इश्यूज होते हैं जो आपको पता ही नहीं होते हैं, और वो इश्यूज की वजह से मे बी नॉट बी हैवन अवेयर, आप उसके बारे में अवेयर नहीं हो। A natural process of enhanced expectations of self and others occur as one learn to relate on deeper, more personal levels with others in the group. ठीक है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें कि अनेबल करता है, एक्सटेंड करता है, जिसमें कि हम अपने आप को सेल्फ को समझ सके और एक्सेप्ट कर सके। ठीक है गर्ल्स, एक्सेप्ट करना मतलब आपको अपने अंदर की कोई नेगेटिविटी को एक्सेप्ट नहीं करना है कि हाँ मैं तो ऐसा ही रूड हूँ, या इस तरीके से एक्सेप्टेशन नहीं करना है खुद को कि हाँ मुझे ये चीज नहीं आती, मैंने खुद को एक्सेप्ट कर लिया, हाँ मुझे घर पे मैं रूड हूँ, मुझे ये एक्सपेक्ट कर लिया है, मैंने मैंने मान लिया है कि मैं मेरे से कुछ नहीं हो सकता है। आपको अपनी नेगेटिव चीजों को एक्सेप्ट नहीं करना है। अगर आपने एक भी नेगेटिव को एक्सेप्ट किया, अपने अंदर की, अपने बाहर की, अपने सराउंडिंग की कि मेरे पास घर नहीं है, या मेरे पास पैसा नहीं है, या मेरे पास कोई जॉब नहीं है, तो इट्स मीन दैट कि आपको अपने अंदर सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी दिख रही है। ठीक है, आपके पास मे बी अभी जॉब नहीं हो, ठीक है, मे बी आपके पास पैसा नहीं हो, बट यू हैव अ कैपेबिलिटी कि हाँ एक दिन मैं खुद को इतना इतना कैपेबल बनाऊंगा कि मेरे पास वो जॉब, मेरे पास वो पैसा, मेरे पास वो मनी, वो अपॉर्चुनिटी खुद आगे से आए। ठीक है, एक्सेप्ट योर सेल्फ पॉजिटिवली। अगर आपके अंदर कुछ नेगेटिविटी है तो उसको निकाल के आप पॉजिटिव थॉट को एक्सेप्ट करो। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, हम अपने आप को डीपली एनालाइज कर रहे हैं, पर्सनली लेवल पे जान रहे हैं कि हाँ, और यहाँ पे एक्सपर्टीज भी बैठे होते हैं, जहाँ पे कि एक्सपर्टीज भी आपको गाइड करते हैं कि वॉट एवर यू आर थिंकिंग, आपको जो जो भी थॉट आ रहे हैं, जो भी
आपको ड्रीमिंग आ रहे हैं, डे ड्रीमिंग आ रहे हैं या नाइट ड्रीमिंग आ रहे हैं, या फिर आपने जो भी अपने अंदर में जो भी गलत या नेगेटिव थॉट्स बना के रखे हैं उसको किस तरीके से निकालना है। ठीक है, और आपने अगर एक भी नेगेटिविटी को एक्सेप्ट कर लिया ना गर्ल्स कि हाँ मुझसे नहीं हो पाएगा, अगर आपने ये भी एक्सेप्ट कर लिया ना, तो आपको पूरे लाइफ में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी ही मिलेगी। अगर आपने अभी से ये तय कर ले कि ठीक है मुझसे नहीं हो रहा है, मैं ट्राई करके देखता हूँ, ये बिहेवियर ला रही है ना अपने अंदर में, तो आपको कोई भी चीज सीखने से कोई भी तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि आपका बिहेवियर और आपकी हैबिट आपको डेवलप कर रहा है, आपको एनकरेज कर रहा है कि ठीक है ना, रिजल्ट भले नहीं मिले, भले हम टॉप लेवल तक नहीं जाए, बट पार्टिसिपेशन का तो एक्सपीरियंस रहेगा। The group provides an opportunity for personal experimentations. It is a safe place to risk learning more about yourself and new ways of interacting. ठीक है, यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है आपको कि आप खुद के बारे में जान सको, खुद के बारे में समझ सको और खुद के बारे में एक्सप्लेनेशन दे सको। और यहाँ पे कहाँ पे ऐसे प्लेस में आप रिस्क भी ले सकते हो। ठीक है, किस तरीके का ले सकते हो कि अपने आप को कोई और नई चीजों को अडॉप्ट करने के लिए आप मोटिवेट कर रहे हो, नई चीजें सीखने के लिए आप मोटिवेट कर रहे हो। देन ग्रुप एटमॉस्फेयर, यस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। गुड एटमॉस्फेयर, मैंने आपको एक बेबी का बताया, अगर आप बच्चे का आप असेसमेंट कर रहे हो या उनसे कुछ क्वेश्चन आंसर कर रहे हो या उनका कोई काउंसलिंग कर रहे हो, तो जो एनवायरनमेंट है वो सेफ होना चाहिए। द फर्स्ट ग्रुप टास्क इज टू एस्टैब्लिश एन एटमॉस्फेयर ऑफ सेफ्टी एंड रिस्पेक्ट। ठीक है, अगर मैंने आपको बोला गर्ल्स हमारे पास लिमिटेड 8 बाय 8 का रूम है और वहाँ पे लिमिटेड 4 या 6 टेबल्स है, और वो 6 टेबल्स में मैं आपको बोल रही हूँ कि 40 स्टूडेंट को वहाँ पे सेटल करना है, वहाँ पे 40 स्टूडेंट को मेरे को अरे इंगेज करना है, वहाँ पे बैठाना है। तो मैं क्या कर रही हूँ, आपको एक टेबल पे 4 या 5 लड़कियों को सेटिंग पोजीशन में बैठा रही हूँ कि आपको कैसे तो भी एडजस्ट करना ही है आपको। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, यू आर नॉट कंफर्टेबल। बेसिकली आपको जो एनवायरनमेंट है वो भले ही कितना अच्छा हो, बट आपको वहां कंफर्टेबल फील ही नहीं हो रहा है, तो आप स्टडी की तरफ तो फोकस करोगे नहीं। ठीक है, कोई भी आएगा क्लास में, अब पढ़ाना स्टार्ट करेगा, कुछ लोग कुछ पर्सन लिखेंगे, कुछ पर्सन नहीं लिखेंगे, कुछ पर्सन मे बी वो सफोकेट होंगे कि यार क्या हो रहा है, ये हमसे नहीं हो पा रहा है, हमको कुछ और रूम चाहिए, हमको कहीं और सिटिंग अरेंजमेंट चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका एटमॉस्फेयर और आपको जो सराउंडिंग मैंने दिया है वो प्रॉपर नहीं होने की वजह से आप आगे क्लास को अटेंड नहीं कर पाओगे। ठीक है, ग्रुप लीडर्स आर ट्रेनेड टू हेल्प द ग्रुप डेवलप इनटू अ सच एन एनवायरनमेंट। जो ग्रुप लीडर है, जो भी हो ग्रुप को जो भी हो ग्रुप कम्युनिकेशन या ग्रुप काउंसलिंग अटेंड कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो सारी चीजों को ध्यान में रख रहा है और एक ट्रेनर पर्सन के हिसाब से वो काम कर रहा है। An important benefits of a group counseling is the opportunity to receive feedback from others in a supportive environment. ठीक है, इसलिए जब ग्रुप काउंसलिंग का जब बात आई, मैंने आप लोग से इंटरेक्ट किया, गर्ल्स सेंड योर फीडबैक कि हम ये ग्रुप काउंसलिंग किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा, बट हर एक जो लड़कियां आज तक क्लास में बात भी नहीं करती होंगी या क्लास में अपना कभी उसने हेलो भी नहीं किया होगा, वो लड़कियां तक आके इंटरेक्ट कर रही है कि मैडम हम ऐसे से ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या हो रहा है, आप मुझे फीडबैक दे रहे हो, मैं आपको क्या दे रही हूँ, चांस दे रही हूँ, अपॉर्चुनिटी दे रही हूँ कि जहाँ पे कि आप अपने आइडियाज को शेयर कर सको। It is rare to find friends who will gently point out how you may be behaving in ways that you can be hurtful to yourself and others. ठीक है, मे बी हम लोग क्या करते हैं, आप नॉर्मली आप फ्रेंड्स ग्रुप में ही देख लो, अब हमारी आपकी जो एज ग्रुप है, जो भी एज की जो भी आप चल रहे हो, तो उसमें क्या होता है, मे बी यू आर
आपको कोई भी चीजों से या कोई भी प्रॉब्लम से जब आप सफर करते हो, तो आप क्या करते हो, फ्रेंड्स के साथ बैठ के आप डिस्कस करते हो। तो आपको फ्रेंड्स क्या करते हैं, अलग अलग ऑप्शंस बताते हैं। आप ओके, तुमको घर पे प्रॉब्लम है या फैमिली इशू हो रहा है, तो तुम रिलेटिव के घर चले जाओ कुछ दिन, या तो तुम कहीं बाहर जॉब देख लो। तो हम क्या कर रहे हो, आप लोग उसको सजेस्ट कर रहे हो, वो भी अच्छा सजेशन दे रहे हो। ओके, तो क्या कर रहे हैं हम एक फ्रेंड की तरह उनके साथ में इंटरेक्ट करते हैं। और उसकी जो भी कंडीशन है, जो भी हार्टफुल कंडीशन, उसको फील कर पाते हैं हम। जो हमारे फ्रेंड्स जो भी कंडीशन को जो भी फेस कर रहा है, जो भी कंडीशन में वो चल रहा है, तो हम उसको बोलते हैं कि यार हमारा सुन के बहुत बुरा लग रहा है। क्यों? क्योंकि आप उस चीज को फील कर रहे हो कि हाउ मच वो कितने पेन में है। ठीक है, दैट दिस इज अ यूनिक बेनिफिट ऑफ अ थेरेपी ग्रुप। ठीक है, ये एक यूनिक बेनिफिट है जो थेरेपी ग्रुप में। The leader will help members give feedback in a direct yet respectfully way so that you can understand and utilize new awareness and experiences. ठीक है, आप अपना न्यू फीडबैक, न्यू नॉलेज इस तरीके से रख रहे हो। मैंने जैसे आपको अपॉर्चुनिटी दी, गर्ल्स मुझे बताना है कि हाँ हमारा ग्रुप काउंसलिंग कैसे होगा। ठीक है, तो सब लोगों ने क्या किया, अपने अपने हिसाब से, अपने अपने तरीके से अपने आइडियाज दिए, अपने ओपिनियन दिए। किसी एक ने ओपिनियन दिया, तो दूसरे ने बोला है कि ये हाँ ये ठीक है, बट ये आगे की प्रोसेस नहीं हो पाएगी। मे बी डाटा एक्सक्यूज मी, मे बी डाटा या हिस्ट्री आपको पेशेंट की मिल जाएंगी, बट हम उनसे इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो दूसरा बोल रहा है कि मैं डाटा डालूंगा, हिस्ट्री डालूंगा, बट हमको मेन चीज है, हमको पेशेंट से इंटरेक्ट करना है, वो चीज नहीं हो पाएंगी। तो आप लोग क्या कर रहे हो, अनफॉर्चुनेटली आप लोग भी एक ग्रुप डिस्कशन में थे। ठीक है, कि जहाँ पे कि आप सभी लोग एक ग्रुप डिस्कस कर रहे थे, तो आप व्हाट्सएप के भी ग्रुप में आप लोग डिस्कस कर रहे होंगे कि हम लोग ये वाला एक्टिविटी कैसे परफॉर्म करेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया बेटा? एनी इशू गर्ल्स? ओके, गर्ल्स आप लोगों को किसी को भी अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, समझने के लिए प्रॉब्लम हो रही है क्या, या कोई तकलीफ है? एनी क्वेरीज? आरती, ऐश्वर्या, ब्लेसी, हमारा क्लास कैसा होता है? गर्ल्स आप लोग एंजॉय करते हो बेटा क्लास? जो भी हमारा सेशन होता है, जो भी मैं क्लास में लेती हूँ, आपको कोई एनकरेजमेंट मिलता है या कोई पॉजिटिविटी मिलती है? मेरा वही मोटिव है आपकी, आपको मैं सब्जेक्ट के साथ साथ, कंटेंट के साथ साथ आपको कुछ एक्स्ट्रा भी दे पाऊँ मैं। हेलो हेलो, Yes, ma'am. मैंने कुछ पूछा बेटा आपको? हमारा सेशन कैसा लगता है आपको क्लास? हाँ मैथिली बोलो। गुड, ओके। और रिमेनिंग गर्ल्स, कुछ मोटिवेशन मिलता है कि नहीं मिलता है आपको? ओके, चंचल ने भी टेक्स्ट किया है। तमन्ना क्या मिलता है बेटा? आपने यस मैम तो लिखा है।
गर्ल्स मेरी बस यही इच्छा है कि आप लोगों का ये फाइनल ईयर है, और फाइनल ईयर में आपका जो भी सब्जेक्ट है, जो भी टॉपिक है, वो तो मुझे कवर करना ही है, बट प्लस मैं आपके फ्यूचर के लिए कुछ काम आ सकती हूँ तो वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। वो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैंने आपको फ्यूचर के लिए एनलाइटिंग किया, आपको फ्यूचर के लिए कुछ मोटिवेट किया, जिससे कि आप आज अच्छे प्लेस पे हो। ओके आरती, हाँ बेटा, वो तो मैं थोड़ा लेती हूँ, क्योंकि मुझे भी लगता है कि आप सब सिलेबस के साथ साथ थोड़ा आउट ऑफ द वे भी देखो अपने चीजों को, जिसमें कि आप अपने करियर का भी बारे में सोच सको, फ्यूचर के बारे में भी सोच सको। प्रियंका, आप इसके पहले क्लास में थे क्या बेटा? प्रियंका, प्रेरणा, मैं आपको पहली बार देख रही हूँ। नहीं मैम, मैं तो पहले से ही क्लास में ही हूँ। ओके प्रेरणा, आप रेगुलर रहा करो बेटा। मैम मैं तो रेगुलर ही हूँ। रेगुलर हो क्या? ओके। क्योंकि आप लोग की गर्ल्स अटेंडेंस भी जाती है, इसलिए बोल रही हूँ रेगुलर रहा करो। और जो मैंने क्वेश्चंस के जो आपने मुझे पेपर टेस्ट भी जो सेंड किया है, मैंने अभी तक देखा नहीं है, क्योंकि मुझे वो साइड बाय साइड वो उसके अटेंडेंस भी लिखनी पड़ती है, इसलिए मैंने अभी तक चेक नहीं किया है। जैसे ही मैं मुझे फ्री टाइम मिलता है मैं चेक करती हूँ। और किसी को अगर मैं करेक्शन दे रही हूँ, किसी ने क्वेश्चन जो सॉल्व नहीं किया है पूरा, वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, देन ग्रुप काउंसलिंग वर्सेस इंडिविजुअल काउंसलिंग दिया है यहाँ पे। Groups are often the most effective method to treat the type of concern that university students face. A common myth is that groups are somehow second-rate treatment. Group counseling is recommended when your counselor believes that it is the best way to address your concern. ठीक है, ग्रुप काउंसलिंग ज्यादातर रिकमेंड किया जाता है जब काउंसलर को बिलीव होता है कि ये वाली जो टेक्निक है ये यहाँ पे यूज ज्यादा अच्छे तरीके से हो सकती है। People tend to find out into some trees are more meaningful for some things and value experts more for other things. In a group, yet get both. ठीक है, कुछ एक्सपर्टीज नॉलेज हो सकते हैं, कुछ में भी ऐसा भी हो सकता है गर्ल्स जो मेरे माइंड में नहीं आया पर आप लोगों ने सोच लिया। मैंने आपको बताया था, एक चीज बताया था मैंने, कि मैंने आपके सामने एक वास रखा है, सपोज फ्लावर वास या कुछ भी, बस एक मिट्टी का बना हुआ मड़का जो होता है, छोटा सा पॉट मैंने आपके सामने रख दिया है। ठीक है, मिट्टी का जो कलर का होता है वही कलर का मैंने आपके सामने में रख दिया, और मैंने बोला है गर्ल्स इसको ड्रॉ करो। आपको जो भी यूज करना है, आपको पेंसिल कलर यूज करना है या पेन कलर यूज करना है, या सिर्फ आपको पेंसिल से ही ड्रॉ करना है, या लीड ड्राइंग करना है, जो भी वॉट एवर टेक्निक यू वांट, आप उस टेक्निक से एक पॉट को ड्रॉ करो। और जो भी इस पॉट को लेकर आप जो भी इमेजिन कर रहे हो, मे बी आप फ्लावर पॉट इमेजिन कर रहे हो, मे बी आप उसके साथ रेड फ्लावर्स के साथ इमेजिन कर रहे हो, मे बी आप वो स्पॉट में कुछ कौवा, एक बर्ड को बैठा हुआ है, कौवे को बैठा हुआ देख रहे हो, कुछ भी इमेजिन कर रहा है, तो सबका पर्सपेक्टिव और सबकी ड्राइंग में क्या डिफरेंस दिखेगा मुझे, सबका कंसेप्ट अलग दिखेगा मुझे। हर एक पर्सन ने उसको अलग अलग कंसेप्ट से देखा, किसी ने वाटर कलर यूज किया, किसी ने पेंसिल कलर यूज किया, किसी ने सिर्फ वही पॉट बना के छोड़ दिया, कुछ और बनाया ही नहीं। इट्स मीन दैट कि वो पॉइंटलेस है, उसके आगे उसने चीज को देखा ही नहीं, बस जो दिख रहा है उसी को लिया। आप क्या कर रहे हो, जो दिख रहा है प्लस आप उसके साथ में कुछ और चीजों को इमेजिन कर रहे हो। ठीक है, तो क्या हो रहा है, आप अपने वहां पे कंसेप्ट व्यू दिखा रहे हो। ये एक टेक्निक एक दिन क्लास में करेंगे गर्ल्स, आपको बस आपको स्क्रीन में एक चीज शो करूंगी, और आपको विद इन 15 मिनट्स या 20 मिनट्स में आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, ये टेक्निक यहाँ हो सकती है, क्योंकि अगर मैं एक क्लासरूम में करती हूँ तो आप एक दूसरे का देख लोगे कि यार मेरी फ्रेंड क्या बना रही है और मैं क्या बना रही हूँ। ठीक है गर्ल्स, एक दिन जब हम फ्री रहेंगे तो है एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी में लेंगे, जिसमें कि आप अपने अलग अलग पर्सपेक्टिव को देख सकते हो, अलग अलग कंसेप्ट को देख सकते हो। फिर हर एक पर्सन को बोलेंगे कि हर एक पर्सन दिखाओ कि आपने क्या क्या बनाया है, आपने क्या क्या चीजों को उस तरीके से इम्प्लीमेंट किया है। तो हर एक का जो प्रेजेंटेशन होगा वो अलग होगा।
यहाँ पे मैंने पॉट यूज किया है। मे बी मैं क्लास में जब मैं आपको प्रैक्टिकली ये चीज कराऊंगी तब शायद मैं आपके टॉपिक से ही रिलेटेड आपको कुछ चीज दूंगी मैं, जिसमें कि आपको वो चीज को यूज करके कुछ करना है। ठीक है, मे बी आपको मैं कोई भी लीव्स दे सकती हूँ कि आपको अभी ऐसे कंडीशन में जो भी इजीली अवेलेबल होंगी, मैं आपको वो लीव्स दे दूंगी और बोलूंगी उस लीव से आपको ऐसा कुछ प्रोडक्टिव चीज बनाना है जिसको भी वो पर्सन यूज कर सके, या मे बी उसका आपको उस पाउडर बना के या कुछ तो भी ऐसा आपको मेडिसिन बोलो या रॉ मटेरियल बोलो, आपको इस तरीके से बनाना है तो आप वो चीज कर सकते हो। अगर मैं आपके सामने में तुलसी का पत्ता दे रही हूँ, ठीक है, और सभी को एक ही कंडीशन दिया है मैंने कि गर्ल्स तुलसी के पत्ते के साथ में आपको कोई भी एक बेनिफिट के ऊपर काम करना है, कोई भी एक। ठीक है, कोई में भी तुलसी के ऊपर कफ के लिए काम करेगा, कोई में भी तुलसी के ऊपर चाय पत्ती में डालने के लिए काम करेगा, कोई में भी तुलसी को पिंपल्स के लिए काम करेगा, कोई में भी तुलसी को नहाते वक्त में यूज करेगा। तो सब लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हर एक जन अपना प्रोस्पेक्टिव अलग अलग कर रहे हैं। वो चीजें तो तुलसी का पत्ता तो हर एक चीज में यूज होता है, बट आप उसको अलग अलग चीजों में डिफाइन कर रहे हो, अलग चीजों में बता रहे हो। ठीक है, समझ में आया। और वैसे ही जैसे आप हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने 16, तो 16 लड़कियां 16 टेक्निक्स बताएंगी कि तुलसी के पत्ती को किस किस तरीके से और कौन से बेनिफिट के लिए यूज करते हैं। तो हमारे पास क्या होंगे 16 वेज ऑफ यूजिंग तुलसी का पत्ता हमको पता रहेगा कि ठीक है इसका हम ग्राइंडिंग कर सकते हैं, इसका हम पाउडर बना सकते हैं। तुलसी के पत्ते के साथ साथ हम कोई और पत्ते को अगर मिलाकर कुछ चीज बनाते हैं तो वो और कुछ चीज बनती है। तो 16 न्यू नॉलेज हमको 16 की 16 लड़कियों को एक ही क्लास में मिलेगा। 16 नॉलेज और 16 गर्ल्स, और हर एक के पास एक एक नॉलेज मैंने सबसे कलेक्ट किया तो सबको एक एक नॉलेज मिल रहा है। सबका एक एक नॉलेज जब हम कलेक्ट कर रहे हैं, सबका एक एक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, तो 16 वेज ऑफ नॉलेज आपको मिलेगा कि किस तरीके से हम जो सिर्फ तुलसी का पत्ता ही नहीं, तो तुलसी की स्ट्रीम, तुलसी का जो रूट है, मिट्टी जो उसकी जड़ होती है, वो भी कहीं ना कहीं आप कोई ना कोई टेक्निक के लिए उसको यूज कर सकते हो। ठीक है गर्ल्स, इतना समझ में आया। Your counselor can discuss the advantages or disadvantages of a group or for your particular concerns and needs। ठीक है, मे बी आपको पहले बताना पड़ेगा आपके जो भी काउंसलिंग में जो भी बैठा, जैसे मुझे आपको बताना पड़ रहा है कि बेटा ग्रुप काउंसलिंग में क्या 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 चेंजेस करने मिलते हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिलती है, क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकता है, क्या क्या फायदे हो सकते हैं। ठीक है, और सपोज अगर मैं इंडिविजुअल इंटरेक्शन कर रही हूँ तो मे बी शायद वो इंटरेक्शन इंडिविजुअल करते वक्त वो पहले दिन आपको सारी इंफॉर्मेशन ही दे। और ग्रुप डिस्कशन में क्या हो रहा है कि अगर एक पर्सन के ने बोल दिया तो दूसरा पर्सन इंटरेक्ट कर रहा है कि मुझे प्रेगनेंसी में स्वेलिंग तो हुई थी, पैरों में भी, इसमें भी, बट मुझे ईचिंग भी थी, स्टमक में भी ईचिंग थी, मुझे स्किन ड्राई भी हो रही थी, मेरे बाकी बॉडी पार्ट में भी ईचिंग हो रही थी। तो दूसरा बोल रहा है कि नहीं नहीं, मुझे बाकी बॉडी पार्ट में ईचिंग नहीं हुई थी, मुझे सिर्फ स्टमक में ईचिंग थी। तो सब लोग क्या कर रहे हैं, अपना अलग अलग एक्सपीरियंस बता रहे हैं। जब आप लोग अपना अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं तो सब लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग भी सोच रहे हैं कि हाँ मुझे भी ऐसा हुआ था क्या, मेरी भी ऐसी तकलीफ थी क्या। तो जो नहीं भी था वो भी पॉइंट पे वो सोच रहे हैं कि हाँ मेरा, वो बोले कि मैं डेली नाइट में दूध पी के सोती हूँ, तो बाकी जो लेडीज बैठी बैठी है वो भी सोच रही है कि हाँ मैं भी दूध लेती हूँ, बट मैं दूध के साथ कुछ और सप्लीमेंट्स भी ले रही हूँ, दूध के साथ मैं टैबलेट लेती हूँ, या दूध के साथ में कुछ हल्दी मिला के या फिर कुछ शुगर मिला के ये चीजें ऐड करके मैं हल्दी को ले रही हूँ। तो सब लोग क्या कर रहे हैं, अपने अपने भी आंसर्स दे रहे हैं उसके साथ साथ। ठीक है गर्ल्स, इतना समझ में आया। वी आर डिस्कसिंग द टॉपिक इज ग्रुप डिस्कशन। वो टॉपिक हमारा आधा हो चुका है। देन फियर्स अबाउट बिगिनिंग, यस बिगिनिंग में स्टार्टिंग में शायद आपको मे भी डर लगे कि बाकी लोग क्या सोचेंगे या बाकी लोग क्या बोलेंगे, या हमको इनसे ये टॉपिक पर डिस्कस करना चाहिए या नहीं। जैसे जैसे आपका टॉपिक आगे के बढ़ता है वैसे वैसे आपका फियर भी धीरे धीरे निकल जाता है। वैसे ही जैसे आप फर्स्ट ईयर्स में होते हो, फर्स्ट ईयर्स में बहुत कम लड़कियां पार्टिसिपेट करती हैं, बहुत कम लड़कियां ही एनवायरमेंट से, सराउंडिंग से, टीचर से इन्वॉल्व हो जाती है जल्दी। बट जैसे ही वो फाइनल ईयर्स में आती है तो फाइनल ईयर्स में आते आते काफी लड़कियों में उनका बोस्टिंग हो जाती है, उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है, उनका कम्युनिकेशन बूस्ट हो जाता है, उनके अंदर एक अलग पर्सनालिटी देखने मिलती है कि वो फर्स्ट ईयर से थर्ड ईयर में कितना अच्छा चेंज देखने मिलता है उसमें।
ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे जितना आप फैमिलियर हो रहे हो, जितना आप इन्वॉल्व हो रहे हो, जितना आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, जितना आप सीख रहे हो, जितना आप लर्न कर रहे हो, जितना आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, उतना ही आप आगे वाले को रिफ्लेक्ट कर रहे हो, उतना ही आप आगे वाले को अपना नॉलेज शो कर पा रहे हो। ये कैसे शो कर रहे हो, पहले आपने अपने अंदर में वो नॉलेज डाला, पहले आपने वो नॉलेज को गेन किया, देन वो नॉलेज आप किसी और को दे रहे हो। Okay, that's it, girls. किसी को कोई प्रॉब्लम है बेटा आज की क्लास में, एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट? No, ma'am. Okay, then class is end now. Thank you for joining us. Thank you, ma'am. गर्ल्स आप लोग लेफ्ट हो सकते हो।